یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری. بیروت میں اسرائیلی حملہ، حزب اللہ کے چیف آف سٹاف ہلاک. Israel continues to insist on the full enforcement of the ceasefire agreement with Lebanon while taking steps to ensure our security. پاکستان کے شہر پشاور میں FC ہیڈ کوارٹرز پر شدت پسندوں کا حملہ، 3 اہلکار ہلاک. یہ فیڈرل کانسٹیبلری کا مین گیٹ ہے. وہ جو 3 حملہ آور یہاں پر پہنچے ان میں سے پہلے نے اپنے آپ کو یہاں دھماکے سے اڑا دیا تھا. امریکہ اور یوکرین کا نئے اور بہترین امن فریم ورک پر اتفاق. Now, obviously, like any final agreement, they'll have to be agreed upon by the presidents, and there are a couple issues that we need to continue to work on. کیا پتا کل کو سندھ پھر سے انڈیا کا حصہ بن جائے. پاکستان کی انڈین وزیر دفاع کے بیان کی مذمت. اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو بارڈر تو بدل سکتے ہیں، کیا پتا کل کو سندھ بھارت میں پھر سے واپس آ جائے. پاکستان میں ضمنی انتخابات، لاہور، ہری پور سمیت قومی و صوبائی اسمبلیوں کی 12 نشستوں پر نون لیگ کامیاب، تحریک انصاف کا دھاندلی کا الزام. انڈین سینما کے ہیمن دھرمیندر کی وفات. عمر جی، شاید آپ نے خود کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی چپکے سے آئینے کے سامنے جا کر ہنسیے اور دیکھیے یہ ہنسی کتنی خوبصورت ہے. جانیے کشمیر میں سونے جتنے مہنگے مسالے زعفران کے کھیتوں میں اب سیب کیوں اگائے جا رہے ہیں. زعفران کے یہ بنجر اور خاموش کھیت ایک سنہری دور کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور یہ بھی جانیے کہ لال بیگ میں ایسا کیا ہے کہ وہ 35 کروڑ سال سے زمین پر موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوب مضافاتی علاقے میں ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے ایک سینئر عہدیدار کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیلی فوج کے مطابق حملے میں مارے جانے والے حزب اللہ کے چیف آف سٹاف ہیثم علی الطباطبائی گروہ کے سینئر رکن تھے، جو کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں. Israel continues to insist on the full enforcement of the ceasefire agreement with Lebanon while taking steps to ensure our security. We will not allow Hezbollah, the terror organization, to recover. لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 28 دیگر زخمی ہوئے ہیں. حملے کا نشانہ گنجان آباد علاقہ دہہ میں ایک رہائشی عمارت تھی. حزب اللہ نے ہیثم علی الطباطبائی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کر کے حد عبور کر دی ہے. Today, once again, the Israeli occupation has struck the southern suburb of Beirut, which is yet another ceasefire violation by Israel, with the green light given by the United States to escalate the war on Lebanon. واضح ہے کہ یہ جنوبی بیروت پر کئی ماہ میں پہلا اسرائیلی حملہ ہے. حزب اللہ نے الطباطبائی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے سینئر جہادی رہنما قرار دیا. الطباطبائی پر امریکہ نے $50 لاکھ انعام بھی رکھا تھا اور وہ شام اور یمن میں حزب اللہ کی ایلیٹ فورسز کی کمانڈ بھی کر چکے تھے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملہ حزب اللہ کی عسکری صلاحیتیں دوبارہ بڑھانے کی کوشش کے رد عمل میں کیا گیا ہے، جبکہ لبنان کے صدر جوزف اون نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے. پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر شدت پسندوں کے حملے میں 3 FC اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. CCPO پشاور کے مطابق ایک حملہ آور نے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ جدید ہتھیاروں اور ہینڈ گرینیڈ سے لیس 2 دیگر افراد عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے FC اہلکاروں کے ساتھ
15-20 मिनट के मुकाबले के बाद मारे गए। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस का कहना है कि पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों की चेकिंग भी की जा रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एहलकारों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उन्हें यकीन है कि पुलिस इस दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से अजीजुल्ला खान। ये फेडरल कांस्टेबलरी का मेन गेट है। वो जो 3 हमलावर यहाँ पर पहुँचे उनमें से पहले ने अपने आप को यहाँ धमाके से उड़ा दिया था। उसके बाद जो बाकी 2 हमलावर थे उन्होंने इस गेट के जो छोटा गेट है वहाँ से दाखिल होने की कोशिश की और इस पर जो पुलिस हुकाम हैं उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर जो मौजूद एहलकार थे वो तैयार थे धमाके के बाद उनके साथ इन हमलावरों की फायरिंग की तबादला भी हुआ है। जो वहाँ पे एहलकार थे उन्होंने इस मौका पर उन दोनों हमलावरों को वहाँ पे निशाना बनाया और उसके बाद उन्होंने इस इलाके को क्लियर करने की कोशिश की है। CCPO जो पेशावर हैं डॉक्टर मियां सईद, उन्होंने ये बताया है कि इस हमले में जो 3 एहलकार थे वो हलाक हुए हैं और जो 3 हमलावर थे उनको भी मार दिया गया है। अंदर हमारी नफरी मौजूद है इस टाइम, इर्द गिर्द भी हमने इलाके को कंट्रोल कर लिया है और मजीद हम जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरी है और सिंबॉलिकली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने अपनी लर्नर्स की वजह से उनको नाकाम बनाया। यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे और यहाँ पर जो जख्मी हुए हैं उनमें ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को ड्रॉप करने गए थे स्कूल में और उसके बाद उनका यहाँ पे जख्मी हुए हैं, लेकिन कोई बड़ी कैजुअलिटी जो शहरियों की थी वो भी नहीं हुई और जो हुकाम है उनका ये कहना है कि उनका जो ये हमला था ये उन्होंने नाकाम कर दिया है। इस बारे में जो ये भी बताता चलूँ कि इन दिनों में गुज़श्ता कुछ अरसे में यहाँ पर जो FC के कैंप्स हैं या FC के हेडक्वार्टर्स हैं, बन्नू में हो गया, पुलिस स्कूल DI खान हो गया, वहाँ पर भी हमले हो चुके हैं। ये पेशावर में हमला एक तशवीशनाक बात इस हवाले से है कि पेशावर को इन्होंने तकरीबन ये कहा था कि महफूज कर दिया है, लेकिन ये हमला खुदकुश हमला होना ये एक काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। ये FC कमांडेंट थे 2010 में सिफत गयूर, उनके ऊपर भी यहाँ पे एक हमला हुआ था जिसमें वो अपने कुछ एहलकारों के साथ हलाक हो गए थे। अमेरिका और यूक्रेन का कहना है कि दोनों मुल्कों के मुज़ाकरातकारों के दरमियान नए और बेहतर अमन फ्रेमवर्क पर इतफाक हो गया है। इतवार के रोज़ दोनों मुमालिक की जानिब से ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में अमन मंसूबे पर मज़ीद काम जारी रखा जाएगा। अमेरिका और यूक्रेन की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में अमरीकी हिमायत याफ्ता मंसूबे पर बातचीत इंतहाई नतीजा खेज रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इस मंसूबे पर ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। I think we made a tremendous amount of progress, even from the last time I spoke to you, and I apologize for keeping you waiting, but there was more work to be done. Now, obviously, like any final agreement, they'll have to be agreed upon by the presidents, and there are a couple issues that we need to continue to work on. But I think the report today is that I think today was worthwhile. It was it is probably the most productive day we have had on this issue. रूस की जानिब से इस मंसूबे का मोहतात अंदाज में खैर मकदम किया जा रहा है। ताहम कीव और यूरोपीय रहनुमा समझते हैं कि यह मंसूबा क्रेमलिन के लिए बहुत ज़्यादा साजगार है। रूबियो का कहना है कि अभी इस पर कुछ काम करना बाकी है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम हमारी बात सुन रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रूबियो का कहना था कि जिनीवा में इतवार का दिन मुज़ाकराती टीमों के लिए बहुत अच्छा रहा। उनका मजीद कहना था कि इस बातचीत का बुनियादी मकसद 28 नुकाती अमरीकी मंसूबे में शामिल चीज़ों को महदूद करने की कोशिश करना था। रूबियो के मुताबिक फरीकैन को इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान ने इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सूबा सिंध से मुतल्लक दिए गए एक बयान को गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हद तक तारीख को मस्ख़ करने की कोशिश करार देते हुए इसकी सख्त मज़म्मत की है।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इंडियन वजीर दिफा का ये बयान उस हिंदुत्वा सोच की अक्कासी करता है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन, तस्लीम शुदा सरहदों की हुर्मत और रियासती खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। वजारत खारजा का ये रद्द-ए-अमल राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज शायद सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है तो सरहदें बदल सकती हैं। क्या पता कल को सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई में होने वाली फिजाई झड़पों के महीनों के बाद भी सियासी व अस्करी रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात देने का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और इंडियन वजीर दिफा का हालिया बयान इस सिलसिले की ताज़ा कड़ी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सार्फिन, तज्ज़ियाकारों ने इस बयान को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार देते हुए इसे इलाकाई अमन व इस्तेकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया है। पाकिस्तान में जुमे को होने वाले कौमी व सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 12 में से 11 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब रही। NA-18 हरीपुर में नून लीग के बाबर नवाज खान ने 1,63,996 वोट हासिल किए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट ले सकी। NA-129 लाहौर में नून लीग के मोहम्मद नौमान ने 63,441 वोट हासिल किए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट ले सके। PTI ने NA-18 हरीपुर और NA-129 लाहौर में धांधली के इल्जामात आयद किए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर ज़्यादातर हलकों में नून लीग ने बरतरी हासिल की है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी वफ़ात को इंडियन सिनेमा का बड़ा नुकसान करार दिया। धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात में हेमा मालिनी, ख़ानदान के अफराद और फिल्मी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। धर्मेंद्र सांस की तकलीफ के बाइस मुंबई के अस्पताल में दाखिल थे और चंद रोज़ कबल ही घर लाए गए थे। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से आगाज़ करने वाले धर्मेंद्र ने सत्याकाम, चुपके चुपके और शोले जैसी क्लासिक फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्मी दुनिया के हेमैन कहलाने वाले धर्मेंद्र ने अपनी ज़िंदगी में रोमान, एक्शन, मिज़ाह और संजीदा किरदारों में यकसा शोहरत हासिल की। वो उर्दू ज़ुबान, शायरी और अपनी फ्याजी के लिए भी जाने जाते थे। भारत और पाकिस्तान में उनके बेशुमार मद्दाह मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शामिल हैं। धर्मेंद्र को 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। ओमर जी, शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं सबसे ही प्यार करता हूँ। मैं हूँ ही बड़ा जज्बाती इंसान हूँ। मुझे आता है प्यार लेना, आता नहीं। मेरी जो नेचर है ये तो बदले नहीं बदली जाती। मैं पर्सनल लाइफ में भी, स्क्रीन पर भी, जब कहीं मुलाकात किसी से मिलता हूँ तो मैं भांप लेता हूँ कि लोगों को मेरे दिलों में मेरा कितना प्यार है, उससे डबल मैं उनको देता हूँ। मैं लुटेरा हूँ प्यार का, मैं लूट लेता हूँ और मैं बड़े आसानी से लोग लूट जाते हैं। मैं इसी एक अच्छा इंसान, एक जज्बाती होना और एक अच्छा इंसान होना मेरे ख्याल से कुछ बनने से पहले बहुत ज़रूरी है। और नहीं, बस ये ऊपर वाले की देन है। उसने, मेरे माँ बाप का एहसान है कि मुझे ऐसा बनाया उन्होंने, और मेरे अंदर एक ऐसे कंप्यूटर फिट किए हुए हैं जो फ़ौरन उसमें ढल जाता हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी दैट आप लोग इतना चाहते हो, और ये चाहत को मैं अपनी शक्ति बना लेता हूँ हमेशा, और इस शक्ति से मैं और आगे बढ़ूँगा, और जब तक बन पाए आपको प्यार देता रहूँगा अपनी फिल्मों के ज़रिए भी। मैं तो चाहता हूँ कि सारी दुनिया एक कुनबा हो जाए तो कितना अच्छा है।
मैं वही कहता हूँ प्यार से, मैं तो एक अपना ही शेर एक सुनाता हूँ कि परवाह करके देख प्यार आ ही जाएगा, दुश्मन भी बन के यार आ ही जाएगा। ज़रा परवाह करके देखें तो प्यार अपने आप आ जाता है। केयर करना सीखें एक दूसरे के लिए तो माहौल में कितनी खूबसूरती आ जाती है। वो दौर मिस कर रहा हूँ। मेरे साथ काम करने वाले बहुत से मेरे अदाकार भाई जो नहीं रहे वो बड़े याद आते हैं। महमूद याद आता है, अमजद याद आता है, जॉनी भाई याद आते हैं, सब सुंदर जी याद आते हैं। किसको जिसका नाम लो सब एक खलश सी है अभी दिल में उठता हूँ, वो क्यों नहीं है। ये तो चला चली का मेला है वैसे तो, लेकिन फिर भी वो जो उनसे मैं जुड़ा हुआ था सबसे प्यार था मुझे। मैंने सोचा था कि रहूँगा, पर इतनी ये भगवान की बहुत बड़ी मेरे ऊपर एक कृपा है, उसकी मेहर है ऊपर वाले की, और आप लोगों का प्यार है जो मैं इतनी लंबी नहीं खेल सका, और आपकी दुआएं और प्यार से चलता भी रहूँगा। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कई बरसों से ज़ाफ़रान की पैदावार में मुसलसल कमी देखने में आ रही थी, मगर इस साल सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई और सिर्फ 5% फसल हासिल हुई। ज़ाफ़रान की तारीखी और कीमती फसल में इस गैर मामूली कमी ने काश्तकारों को शदीद मायूस कर दिया है, जिसके बाइस वो मुतबादिल फसलें उगाने पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद तफसील रियाज मसरूर से। ज़ाफ़रान के ये बंजर और खामोश खेत एक सुनहरी दौर के खात्मे की तरफ इशारा करते हैं। इंडिया के ज़ेर-इंतज़ाम कश्मीर के पांपोर कस्बे के ये वसी खेत चंद साल तक ज़ाफ़रान की खेती से लहलहाया करते थे, लेकिन आज ये बंजर दिखाई देते हैं। इसकी वजह है कि ज़ाफ़रान की काश्त में इस साल पहली मरतबा 95% कमी रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस बीच चंद ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने मजबूरी या लाचारी में कुछ तजुर्बे भी करना शुरू किए हैं। ये जो आप ये बंजर ज़मीन खाली खाली सी दिख रही है, बैरल जो ये लैंड है, कुछ साल पहले यही पूरा का पूरा पर्पल कलर में नज़र आ रहा था, लेकिन आज इस डेट में आपके सामने पूरा बंजर है। इसमें जो फॉल हो रहा था, साल के बाद कम हो रहा था। इस साल मुश्किल से 5% निकल गया। इसलिए तो हम ये मजबूर हो गए कि ये दूसरे कल्टिवेट क्रॉप में हम ये चेंज करेंगे, क्योंकि हमें तो अपना बाल बच्चे पालने हैं। हमारा यहाँ एग्रीकल्चर वालों उनके साथ ये मीट हुआ है, उन्होंने हमें आइडिया दिया है कि इसमें आप दूसरा क्रॉप कल्टिवेट करो। तो हमने चूज़ किया है इसमें जो लेवेंडर है। लेवेंडर कश्मीर में बहुत कम इसमें एक्सपोजर है, लेकिन हमने इसको स्टार्ट किया है। इस इलाके में और भी कोई एग्जांपल्स हैं? नहीं, मैं पहला फार्मर हूँ जिसने ये स्टार्ट किया है। एक्चुअली आई एम लैंडलॉर्ड, तो सभी मेरे फॉलो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम देखेंगे आप जब काम सक्सेस होंगे तो वो हमारी तरफ सब माइल हो जाएंगे। अब तो खवातीन भी खेतों में ज़ाफ़रान की जगह लेवेंडर के फूल चुनती नजर आती हैं। मुझे लगता है इससे हमारी उम्मीदें जो है जाग गई, क्योंकि ज़ाफ़रान की खेती वो तो साल में एक बार होती है, क्योंकि लेवेंडर जो है साल में 2 साल ये 2 बार हो सकती है, क्यों तो इसी वजह से इसकी उम्मीद तो हमारे अंदर तो जाग गई है। फसल की नाकामी पर काश्तकार मायूस तो हैं, लेकिन वो साथ ही नए इम्कानात को भी तलाश कर रहे हैं। इसीलिए लेवेंडर ही नहीं बल्कि यूरोप से इंपोर्ट किए गए हाई डेंसिटी सेब की नर्सरीज भी ज़ाफ़रान के खेतों में दिखाई देने लगी हैं। मुतबादिल कुछ सोचना था सर, तो फिर क्या आया जहन में कि फॉरवर्ड ये जो इटली से हाई डेंसिटी सेब मार्च में लगाए और मई में सैंपल आया, तो ज़ाफ़रान से बेहतर हमें यही लगा। जो ज़ाफ़रान से हमारी आमदनी आती थी वो उससे ज़्यादा तो लेबर का खर्चा आता था। अब जो मुतबादिल हमने हाई डेंसिटी सोचा, ये तो उसे कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श है, कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श है। 30 साल कबल पांपोर में तकरीबन 16 मेट्रिक टन ज़ाफ़रान की फसल होती थी, जो गिरते गिरते पिछले साल 1.5 क्विंटल तक पहुंची। लेकिन इस साल पहली मर्तबा काश्तकारों के मुताबिक पांपोर में सिर्फ 45 किलोग्राम की पैदावार हुई है। फसल की नाकामी की एक वजह क्लाइमेट चेंज को करार दिया जा रहा है, लेकिन काश्तकारों को हुकूमत से भी गिला है। ये जो एटमॉस्फेयर मौसम का बदलना हुआ तो ये एक वजह है। दूसरी वजह इसकी ये है जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, उसकी वजह भी यही है। ये क्योंकि हमारे एरिया में और इलाकों से ज़्यादा पोल्यूशन है,
وہ اس لیے کہ ہمارے علاقے میں سیمنٹ فیکٹری یہاں بہت اسٹیبلش ہوئی ہے، تو اس کا جو پولوشن ہے وہ مین فوکس اسی پر ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہمارے جو کراپ ہے یہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو تیسرا پھر اس میں گورنمنٹ نے اس میں ایک قدم اٹھایا کہ ہم اس نے ایک سیفران مشن اس کا سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں مین یہ کہا تھا کہ اس کا ہم اریگیشن کریں گے، لیکن بدقسمتی سے کیا کہوں کہ پچھلے یہ تو 2018 میں انہوں نے سٹارٹ کیا، آج تک اس میں تو 0% بھی کام نہیں ہوا اریگیشن میں۔ سیفران ٹاؤن کہلانے والا پامپور قصبہ سب سے مہنگا مسالہ یعنی زعفران کی کاشت کرنے والا پورے انڈیا میں واحد علاقہ ہے، لیکن اب پامپور کے کاشتکار زعفران کو گزرا ہوا کل سمجھ کر آگے بڑھنے لگے ہیں۔ لوگ سب ڈپریس ہو رہے تھے، ان کو بہت پریشانی ہے، لیکن اب مجھے پوری امید ہے کہ یہ جب ہم یہ کلٹیویٹ کریں گے اور اس میں جب فصل اگلے گا تو سبھی کے دلوں میں خوشی آئے گی، تو اپنا لیوڈز کما سکتے ہیں۔ سامعین، دنیا بھر میں خوف اور کراہت کا باعث بننے والا کیڑا لال بیگ زمین کے قدیم ترین جانداروں میں شمار ہوتا ہے، جو 35 کروڑ سال سے موجود ہے۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق یہ ڈائنوسار سے بھی پہلے زمین پر پائے جاتے تھے اور حیران کن طور پر آج تک اپنی ساخت میں بڑا تغیر نہیں لا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لال بیگ کا مضبوط بیرونی ڈھانچہ، مختلف حصوں میں موجود گینگلینز اور جسم پر سانس لینے کے لیے موجود اسپرائکلز اسے غیر معمولی طور پر سخت جان بناتے ہیں۔ سر کٹ جانے کے باوجود یہ کیڑا تقریباً 1 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے، البتہ پانی کی عدم دستیابی اسے آخر کار موت تک پہنچا دیتی ہے۔ لال بیگ رات کے وقت زیادہ سرگرم اور کچن اور باتھ روم جیسے نم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق وہ تیز رفتار موافقت کی وجہ سے بار بار واپس لوٹ آتے ہیں، اسی لیے ان کا مکمل خاتمہ مشکل ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں لال بیگ کی 4500 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن صرف 30 کے قریب انسانی بستیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو کوئی نہیں بچتا، لیکن لال بیگ بچ جاتے ہیں، مگر ماہرین کہتے ہیں یہ درست نہیں، کیونکہ کسی دوسرے جاندار کی طرح یہ بھی جوہری حملے یا دھماکے کے دوران گرمی سے مر جائیں گے، ان کا سیلولر مواد پھٹ جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ ان میں تابکاری کو برداشت کرنے اور زندہ رہنے کی صلاحیت 15 گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن جہاں حملہ ہوتا ہے وہاں وہ زندہ نہیں رہ پاتے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جوئے کے ایپس کے فروغ سے متعلق مقدمے میں یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ سعد الرحمان کو رواں برس اگست میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی یعنی NCCIA نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ بیرون ملک روانہ ہونے کے لیے امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچے تھے۔ ان کی گرفتاری کے وقت NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ سعد الرحمان عرف ڈکی اپنا نام PNIL میں موجود ہونے کے باوجود ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب وہ امیگریشن کے لیے پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کا شمار پاکستان کے ان یوٹیوبرز میں ہوتا ہے جن کے فالورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنی مزاحیہ ویڈیوز اور فیملی ویلاگز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی جانب سے پوسٹ کیا جانے والا مواد ماضی میں بھی متنازع رہا ہے۔ رواں برس کے آغاز میں بھی انہیں اس وقت قانونی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی موٹر وے پر لاپرواہی سے ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے انہیں اس مقدمے میں حفاظتی ضمانت دے دی تھی۔ تاہم اس مرتبہ سعد الرحمان کو جس معاملے کا سامنا ہے وہ اپنے پلیٹ فارمز پر غیر قانونی جوئے کی ایپس کی تشہیر کا ہے۔